फ्रेंड्स, वेलकम टू पैकनरी कैपिटल सागा। तो रोज़ की तरह जब भी ट्रेडिंग डेज होते हैं तो मैं आपको सुबह वीडियो प्रोवाइड करवाता हूँ। कोशिश रहती है कि 10 और 11 से पहले पहले आपको एक वीडियो मिल जाए जिसको मैं फंडामेंटली शेयर का एनालिसिस करके आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ और उसके बारे में आपको डिटेल में बताता भी हूँ। तो इसमें यही है कि मैं कभी भी इन शेयर्स में स्टॉप लॉस नहीं लगाता, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं इसमें से कभी लॉस करके बाहर आऊँगा। लेकिन फिर भी आप अपना एक रिस्क एपिटाइट जो है आपका, उसके अकॉर्डिंगली आप एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 5%, 10% या जो भी बटा जो भी है। तो मैं शेयर को जो भी है आपके साथ डेली जो भी डिस्कस करता हूँ कि आप किसी के कहने पे, इवन दो कि मेरे कहने पे भी कभी भी आप शेयर में ट्रेड ना करें। सबसे पहले मैं जो बताता हूँ आप उसका पहले पूरा जो भी है उसको क्रॉस चेक करें। गूगल पे हर चीज़ अवेलेबल है। जो मैं जिन शेयर की बात करता हूँ आप उनको सर्च करें कि क्या बाकी जो मैं कह रहा हूँ वो सही है। तो बाकी जो मैं जो यहाँ पर शेयर करता हूँ तो उनमें से मोस्टली मैं खुद उनमें ट्रेड करता हूँ। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो पहला शेयर है वो KPR मिल लिमिटेड है। रेटिंग इसकी बाई है, जिसका करंट मार्केट प्राइस इस समय चल रहा 590 के आसपास और प्राइस टारगेट है 755। एंड कंपनी डिस्क्रिप्शन इज KPR इज वन ऑफ द लार्जेस्ट वर्टिकली इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज इन इंडिया प्रेजेंट अक्रॉस द वैल्यू चेन फ्रॉम फाइबर टू फैशन। KPR has 12 technology oriented manufacturing units with the capacity to produce 1 lakh million ton of yarn per annum, 40,000 million ton of fabric per annum and 115 million ready-made knitted apparel per annum, including a 10 million knitted garment capacity in Ethiopia. KPR has recently forayed into the retail segment with Faso, a 100% organic innerwear, sportswear and athleisure brand. The company also has sugar business with sugar production capacity of 5,000 TCD, ethanol capacity of 130 KLPD and power generation capacity of 40 megawatt. In financial year 2021, 65% of the total revenue came from the domestic market, whereas export contributed 35% to revenue. The company exports to over 60 countries, including Europe, Australia, and the US. And key investment arguments are be maintained buy on KPR Mill Limited with a revised price target of rupees 755, integrated business model, sustain export demand, and strong return profile makes it a best play in the textile space. New garment production capacity of 42 million garments is commissioned at Tamil Nadu. Garment business revenue is expected to post a CAGR of 22% over financial year 2021 to financial year 2024, with total capacity of 157 million garments. Capital allocation in high ROCE business garments 30%, ethanol 22 to 23%, with help in improving ROCE to 31.9% in financial year 2024 from 25.2% in financial year 2021. Export demand remains strong in the US and Europe, while free trade agreements with European Union retailers, large international players scouting for sustainable supply option in Asia and US likely to put sanctions on countries such as Bangladesh or potential growth drivers for the company in the medium term. एंड अगले शेयर पे चलते हैं। शेयर का नाम है DLF लिमिटेड और इसको हम बाई करेंगे 390 के आसपास, जो कि इसका करंट मार्केट प्राइस है, और शॉर्ट टर्म का टारगेट हमारा 487 के आसपास रहेगा और अपसाइड यानी कि 25% का हम प्रॉफिट इसमें देख रहे हैं। तो एक रियल एस्टेट वेटरन है। अभी मैं रियल एस्टेट के ही जो नेक्स्ट 2-3 शेयरों में बात करूँगा, क्योंकि अभी इसका लगता है कि अपसाइड है, इसका काफ़ी ट्रेंड है इसका मार्केट में। तो कंपनी डिस्क्रिप्शन इज DLF इज इंडियाज लीडिंग रियल एस्टेट डेवलपर एंड हैज़ मोर देन 7 decades ऑफ ट्रैक रिकॉर्ड. DLF हैज़ डेवलप्ड 153 रियल एस्टेट प्रोजेक्ट एंड डेवलप्ड एन एरिया ऑफ अप्रोक्सीमेटली 330 million square feet. DLF group has 215 MSF approximately of development potential across residential and commercial segment. The group has an annuity portfolio of over 35
MSF approximately. DLF is primarily engaged in the business of development and sale of residential properties, the development business, and the development and leasing of commercial and retail properties, the annuity business. And key investment arguments are: we initiate viewpoint coverage on DLF with a positive view, and 23 to 25% given strong growth potential in residential and rental portfolio. DLF sales and cash flow are expected to be driven by 35 MSF of residential project pipeline estimated at rupees 40,000 crore over the medium term. Its rental portfolio in DCCDL is slated to clock a 17% CAGR over financial to 21 to 24E, while potential to grow to 54 MSF from current 37 MSF over the longer term. Huge hug land bank of 187 MSF at low carrying cost provide opportunities for better operating margins and a sustainable project pipeline for future development. तो ये था DLF का बारे में। अब चलते हैं नेक्स्ट के। तो नेक्स्ट ये है प्रेस्टीज इस्टेट प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। इसको हम बाई करेंगे जिसका करंट मार्केट प्राइस है 451 के आसपास, और शॉर्ट टर्म का टारगेट हमारा है 586, और अप साइड पोटेंशियल जो है हमारा वो 30%, यानी कि हम 30% के आसपास इसका एक देख रहे हैं, एक अच्छा टारगेट हमारा है। एंड एग्रेसिव कंटेंडर, तो ये है कि इसमें काफ़ी लगता है कि हमें अच्छा रिटर्न मिल सकता है और जल्दी मिलेगा। कंपनी डिस्क्रिप्शन इज Prestige Estate Project Limited has become synonymous with iconic designs and world-class quality in developing real estate projects across residential, office, retail, and hospitality segment. We embarked on our journey in 1986 from southern India and have gradually forayed into the top 12 market across India, completing 255 projects spanning 144 million square foot over the last few decades. With an impeccable track record in efficient execution and on-time delivery, we have built a brand that enjoys the trust of our customers and stakeholders. And key investment arguments are: we initiate viewpoints coverage of Prestige Estate projects with a positive view and expected 28 to 30% upside given near-term and long-term growth levers for its residential and rental portfolio. Prestige has a strong pipeline of 41 MSF in residential plotted development, which is expected to generate strong cash flows. Ventures in Mumbai and NCR markets provide further growth avenues. Its rental portfolio comprising office and retail is slated to increase rental income by 10 times over the next 5 years. Hospitality income is expected to double post expansion. The company has a healthy land bank with 24 MSF of development potential. Post consumptions of deal with Blackstone, leverage should not be of much concern. तो ये था न्यू प्रेस्टीज इस्टेट प्रोजेक्ट लिमिटेड का। अब चलते हैं अब जो अगला है रियल इस्टेट का, मैक्रोटेक डेवलपर्स लिमिटेड। तो बाई करेंगे इसको हम 1182 के आसपास, और शॉर्ट टर्म का जो हमारा टारगेट है वो 1418 के आसपास है, यानी कि अपसाइड 20%। और आप चाहें तो इसको थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए भी रख सकते हैं, लेकिन फिलहाल तो आप 20% में बुक कर लें इसको। एंड कंपनी डिस्क्रिप्शन इज लोधा group is among the largest real estate developers in India that delivers with scale. Since 1980s, core business of Lodha Group is residential real estate development with a focus on affordable and mid-income housing. The group also has a growing industries and logistic park business. Lodha Group has delivered more than 81 million square feet of real estate and is currently developing 93 million square feet under its ongoing and planned portfolio. The group has more than 4,400 acres of land behind its ongoing and planned portfolio, which will be utilized in developing further residential, commercial, and industrial and logistic spaces. And key investment arguments are: we initiate a viewpoint coverage on Macrotech developers with a positive view and expect 18 to 20% upside given its strong launch pipeline and high cash flow surplus. Lodha has outpaced other large real estate developers in terms of sales and execution, placing it in the league of large residential property developers. It enjoys leadership positioning in lucrative MMR region. Lodha has outpaced other large real estate developers in terms of sales and execution, placing it in a league of large residential property developers. It enjoys leadership positioning in lucrative MMR region. It has land reserves of 4,400 acres, providing long-term visibility. It targets to become net cash positive by 24। अब है अगर नेक्स्ट जो हमारा आता है वो शोभा लिमिटेड है, उसको हम बाई करेंगे 811 के आसपास,
और शॉर्ट टर्म का टारगेट जो हमारा रहेगा 973 के आसपास। अप साइड है इसका 20%। वन कंपनी डिस्क्रिप्शन इज सोवा हेडक्वार्टर्ड इन बेंगलोर, प्राइमरली फोकस्ड ऑन रेजिडेंशियल एंड कंट्रक्चुअल projects with 3 decades of experience. Mr. PNC Menon founded SOVA Limited in 1995. In 2006, SOVA went public through its initial public offering. SOVA was founded by Mr. PNC Menon in August. The Bengaluru-based group has been engaged in the construction and development of real estate for the past 26 years. As on September 30, 21, it has developed 1,147.2 lakh square feet, of which around 75% is in Bengaluru. The group also has presence in Thrissur, Chennai, Pune, Gurugram, Coimbatore, Calicut, Mysore and Cochin. Key investment arguments are: initiate viewpoint coverage on SOVA Limited with an upside potential of 18 to 20% to healthy pipeline of project launches, timely execution and improving sentiments in the real estate sector. SOVA has created a strong brand recall with its timely execution and project sales. Its saleable area pipeline of 25 MSF provides healthy revenue visibility. The company estimates rupees 7,214 crore of cumulative cash flow from 41.93 MSF of unsold completed inventory and ongoing projects. Contractual business execution is expected to improve from H2 FY 2022. The company has large land reserves acquired historically with a development potential of almost 200 MSF, which is expected to provide filling to operate margins. Net debt to equity to improve further from current 1.13 times. अब आता है इंडिया बुल्स रियल एस्टेट। तो इसका जो हम बाई करेंगे वो है 157 के आसपास और शॉर्ट टर्म का टारगेट हमारा रहेगा 188 के आसपास और अपसाइड पोटेंशियल जो इसका है वो 20% के आसपास है। तो कंपनी डिस्क्रिप्शन आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं, ये इन्वेस्टमेंट आर्गुमेंट पढ़ सकते हैं, क्योंकि काफ़ी आगे वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। अभी मैं आगे फिर जो भी है निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में बताऊंगा। तो आप जो कंपनी डिस्क्रिप्शन इसको पॉज करके यहाँ इसको जो भी है इन्वेस्टमेंट करने से, अगर आप इसको ट्रेडिंग करनी है या इन्वेस्टमेंट करनी है तो जरूर इसको रोकें और पढ़ें इसको यहाँ से। अभी एक जो मिनिस्ट्री ने नोटिस दिया है, ये कल जो आया है कि जो लोग तो कम्युनिटी में ट्रेड करते हैं तो उनका जो फ्यूचर ट्रेडिंग है उसको फिलहाल तो रोका गया है फ्यूचर के लिए। तो जहाँ पर ये सारा बताया है कि जो फ्यूचर ट्रेडिंग है पैडी, नॉन बासमती, बीट, चना, मस्टर्ड सीड्स, सोयाबीन, क्रूड पाल्म ऑयल और मूंग में, तो इनमें अभी फ़िलहाल जो ये खाली न्यूज़ उन लोगों के लिए है जो कमोडिटी में ट्रेडिंग करते हैं, तो इसको फिलहाल फ्यूचर ट्रेडिंग रोकी गई है। बाकी आप इसको स्पॉट जो उसमें कर सकते हैं, लेकिन फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए रोका गया है इसको, ठीक है। तो चले आगे चलते हैं, निफ्टी का एनालिसिस देखते हैं। तो निफ्टी का ऐसा है कि अभी ये जो निफ्टी है 16,994 के आसपास जो भी चल रहा है इस समय, तो जो बंद हुआ था, मार्केट बंद हुई थी, तो इस समय इसके पास ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है यहाँ पर। और अगर ये ब्रेक होती है तो मार्केट ये मान के चलिए कि आपकी ये 16,900 के आसपास जा सकती है। लेकिन फिर भी आप पहला जो टारगेट रहेगा, बाई अगर करते हैं, अगर जहाँ सस्टेन रहती है थोड़ी देर के लिए और ऊपर जाती है, तो पहला टारगेट आपका 17,100 है, दूसरा आपका 17,180 के आसपास रहेगा। तो बाकी आपका जो रहेगा अगर आप फिर इसको थोड़ा सा शॉर्ट टर्म के लिए देखते हैं तो ये 17,280 के आसपास रहेगा। तो ये है आपका इसका जो निफ्टी का एनालिसिस। तो बाकी मैं डिटेल में आगे बताता हूँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में। तो बैंक निफ्टी का भी यही है कि बैंक निफ्टी थोड़ा सा नीचे आ सकती है, 35,500 से थोड़ा इसके आसपास आ सकती है, लेकिन आपका पहला टारगेट जो रहेगा वो 35,900 के आसपास इसका आपका टारगेट रहेगा इसका। तो ये है इसका बैंक निफ्टी का आज का एनालिसिस। तो चलिए मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस में डिटेल में बताता हूँ आपको। तो शॉर्ट टर्म का जो ट्रेंड है वो है, सपोर्ट जो रहेगी वो 16,780 के आसपास है, और निफ्टी की और जो रेजिस्टेंस है 7,400 के आसपास है। और बैंक निफ्टी की बात करें तो 35,300 के आसपास है, और अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो 37,000 के आसपास है। और अगर निफ्टी की बात करें तो मीडियम टर्म जो ट्रेंड है वो 16,600 के आसपास मान सकते हैं कि अगर मार्केट डाउन जाती है, अगर मार्केट ऊपर जाती है तो 18,600 के आसपास है। और बैंक निफ्टी की बात करें तो पहली सपोर्ट जो रहेगी वो 34,700 के आसपास है, और जो इसकी अगर मार्केट ऊपर चली जाती है तो 41,830 के आसपास है। और आज की और सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करते हैं निफ्टी में, तो पहली सपोर्ट आपकी है वो 16,966 है, और अगर ये ब्रेक हो जाती है, मार्केट नीचे जाती है तो $16,900 के आसपास है। अगर ये ब्रेक हो जाती है तो 16,870 के आसपास रहेगा। अगर आपको 16,870 के आसपास अगर आपको ये निफ्टी मिलती है यहाँ पर, तो जहाँ से आप बाई कर सकते हैं, जो बिगिनर्स हैं उनके लिए, जहाँ से आप फ्यूचर बाई कर सकते हैं।
और रेजिस्टेंस की बात करें 17,100 है, अगर मार्केट ऊपर चली जाती है। अगर ये ब्रेक हो जाएगा तो 17,187 के आसपास है, और फिर अगर ये भी ब्रेक हो जाता है तो 17,238 के आसपास है। अगर मार्केट आपको 17,230 के आसपास दिखती है तो जहाँ से वो जो बिगिनर्स हैं वो क्या बोलते हैं, सेल कर सकते हैं फ्यूचर, लेकिन आपको जो स्टॉप लॉस है वो करीब आपका 20 पॉइंट से ऊपर नहीं रहेगा, यानी कि जो 38 से ऊपर का 20 पॉइंट्स का, इससे ज़्यादा स्टॉप लॉस आप ना रखें। और बैंक निफ्टी की बात करें तो पहली सपोर्ट है 35,530 के आसपास है। अगर ये ब्रेक हो गया मार्केट नीचे चले जाती है तो फिर आपका 35,327 के आसपास है, और ये ब्रेक हो गया नीचे चले जाती है 35,000 आपका आज का जो है इसका सपोर्ट है, थर्ड सपोर्ट जो आपकी है। अगर मार्केट आपको बैंक निफ्टी जहाँ दिखती है तो आप इसको फ्यूचर को बाई कर सकते हैं, लेकिन आपका स्टॉप लॉस 50 पॉइंट्स का रहेगा। और अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो पहली अगर मार्केट ऊपर चली जाती है तो 35,932 के आसपास है, और अगर आपका ये भी ब्रेक हो जाता है मार्केट और ऊपर चली जाती है 36,240 के आसपास है। ये भी ब्रेक हो जाता है और ऊपर चली जाती है 36,484 के आसपास है। अगर मार्केट आपको इसके आसपास मिलती है, यानी कि आपको 500 के आसपास 36,480 टू 500 के आसपास मिलती है, तो आप जहाँ से जो फ्यूचर है इसका बैंक निफ्टी का वो सेल कर सकते हैं, और आपका स्टॉप लॉस रहेगा 50 पॉइंट्स का, और टारगेट रहेगा मिनिमम 100 पॉइंट्स का। जितना भी स्टॉप लॉस लगाते हैं उसका डबल आपका वो रहेगा, टारगेट रहेगा। तो ये था आज का जो भी एनालिसिस। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक का बटन प्रेस करें, और सब्सक्राइब और बेल का जो आइकॉन बटन है उसको प्रेस करें, ताकि आपको टाइमली जो भी वीडियोस मैं जहाँ पर अपडेट करता हूँ डेली वो आपको मिल सकें। थैंक्स फॉर वाचिंग।